ओपन माइक कैफे में वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। व्यूअर्स, आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे गोल्डन एरा देखने के बाद फिल्म इंडस्ट्री डिक्लाइन में कहां तक गई कि उसका नामो निशान ना रहा। इसी के साथ साथ जो क्वालिटी थिएटर्स होते थे जिसको फैमिलीज देखने जाती थी और उसके बाद वो सिर्फ वल्गैरिटी का नाम रह गए, ऐसा क्यों हुआ, सब पे बात करेंगे हमारे पैनलिस्ट डमी म्यूजियम के गेस्ट के साथ साथ। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जो कि मूवीज़ में काम कर चुके हैं, थिएटर में बहुत इंपॉर्टेंट काम करते रहे हैं, इवन आज भी बड़े नामों में से उनका नाम आता है। वेलकम करते हैं, सरदार कमाल साहब मौजूद हैं जी। हमारे डमी म्यूजियम से आए हुए लोग होते हैं, उनमें सिर्फ एक आज डमी नहीं है, दैट इज असद कैफी। एज असद कैफी बैठेंगे। अच्छा, मैं प्रोड्यूसर लगा तो मेरा तो तारुक कराया नहीं। हाँ यार, प्रोड्यूसर आप दुनिया जान के प्रोड्यूसर से मिले होंगे। इन प्रोड्यूसर आज पहली दफा नहीं मिले हम। अच्छा, और साथ कौन कौन है? मेरे नाम शुमैला कमल, मेरे नाम दी टिकटां विकदियां ने, अगलियां सीटां सारियां मेरियां फुल होंदियां ने। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਡਾਮਾ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਦੱਸ क्या लाया? ਡਾਮਾ और ये कौन है? मेरा नाम सानिया कैफ है जी। ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਡਾਂਸਿੰਗ ਡੋਲ ਹੈਗੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ डांसिंग डोल। लेंगे। अच्छा, समझ आती है कि थिएटर के साथ ये जुल्म क्यों हुआ। राक्षस ये हैं, इंट्रूडर्स ये हैं। आपने थिएटर को रेप किया है। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ। इसी बात जो का बंदा धोखा। डामा कह रहा है उसके साथ क्या बात करनी। ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ 150 ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। होता ही नहीं है। ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇਖਿਆ ਹੀ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਲੋਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। अच्छा जी, आगाज ही क्यों ना हम सरदार कमाल, आप जरा बताएं सरदार कमाल साहब, क्यों रूबा सवाल हुई? ਅਰਜ਼ੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਰਫਾਨ ਖੂਸੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਸਮਾਨ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਣ, ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਲॉप ਕਰਨਗੇ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਆਰਟ ਪਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਲਬਰਾ 'ਚ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਇਤਨਾ ਵਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਟਿਕਟ ਵਿਕਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 5000 ਦਾ 10000 ਦਾ ਬਲਕਿ ਟਿਕਟ ਵਿਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਕਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਂਦੀ। ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਟੈਡੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੀਟ 'ਚ ਸਿਰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ। अच्छा, वो वल्गर बात पे सिर मार रही, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਸੀਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ वो वैसे हिली होनी वरना तारक टेडी दी किसी भी गल ते वो खातून सिर कैसे मार। ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਸਾਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ। ਬਾਕੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ ਥੀਏਟਰ ਅਲਮਰਾ, ਚਲੋ ਅਲਮਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਗੀਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਫਜ਼ਾਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਜਮਨੀ ਜਮਨੀ ਮੈਲੀ ਚਾਦਰ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। मैंने पहली दफा आपको उसी में देखा था जिसमें आप ट्रांसजेंडर्स थे। जी, जी। अल्टीमेट था सरदार कमाल। मैंने आज तक ऐसा शानदार, ऐसा एनर्जी से भरपूर एक कैरेक्टर नहीं देखा जो सरदार कमाल ने। ट्रांसजेंडर्स किसने नहीं किए, बड़े बड़े मतलब सोहेल अहमद जैसे स्टालवर्ट्स ने कर रखा, डस्टिन हॉफमैन ने भी किया हुआ, सब ने किया। लेकिन जो कमाल सरदार कमाल से अल्लाह ताला ने करवाया, बेशक इसने गोल्डन साटन होता है ना, सिल्की गोल्डन साटन, क्यों जनाब यही कपड़े थे ना? ਬਿਲਕੁਲ ਯਹੀ ਥੇ। मेरी मेमोरी देखें, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਲ ਬੂਟ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ वो भी याद थे मुझे। मुझे साटन कैसे याद रहेगी? कैसे? फ्लोर था स्लिपरी, जैसे वुडन फ्लोर होता है ना, जी जी, तो ये नाचते नाचते एक जगह पे आके गिरते थे और स्लिप होते, जैसे स्केटिंग करता जाता है ना बंदा अपने सिल्क की वजह से। एक ये और एक नवाज अंजुम, नवाज जी he was also remarkable। अच्छा, बात ये कि अगर मान लिया जाए कि सिर्फ लोग वल्गैरिटी देखने आते हैं तो फिर ये जन्म जन्म की मैली चादर ये सुपर डुपर हिट क्यों हुआ? चलो ये पुरानी बात होगी। आज भी ये शाह शुराबील आज आकर अगर फैंटम करवाए, ये बिल्कुल गलत है कि लोग सिर्फ जो है वो जी बिल्कुल गलत है। देखना चाहते हैं, वो ये चलाना चाहते हैं। ਸਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਹੁਸਨ ਤੇ ਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਉਹ ਚ ਵਲਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਕਿਤਨੇ ਸਨ, 7-8 ਰਾਈਟਰ ਸਨ, ਨਾਸਰਦੀਪ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ਼ੀਰ ਨਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, परवेज कलीम साहब, आगा हसन इम्तिसाल साहब, इरफान खुसर साहब, अफजाल साहब जी 8-9 ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਤਾ 8 ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੀਨ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਨ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਅੱਛੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। थिएटर इज क्राफ्टमैनशिप। देखिए राइटिंग उसमें सिंपल नहीं होती। थिएटर में जो स्पॉन्टेनिटी है एक्टिंग की, जो तरीका है स्टेज पे चलने का, जो आवाज़ पे कंट्रोल चाहिए, वो किसी और मीडियम में नहीं इस्तेमाल होता। मेटिकुलस, इतना मेटिकुलस मैंने किसी को नहीं देखा जितना स्टेज डायरेक्टर, कि तुमने आके टर्न गलत जगह पे लिया, तुम्हारा एंगल ठीक। फिल्म में, टीवी में, who cares and who bothers? The camera is very forgiving. Yes. ਭਾਈ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ। 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਜਾਂ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਸਰ ਦਿਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ 3 ਚੱਲਦਾ। ਘੰਟੇ ਲੈ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਰਾਮਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਗਾਣੇ ਵੱਜਣ। जी ਅਰਜ਼ੇ ਵੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਸੈਂਸਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਲੋਕ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਈਵਾਲ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਕਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤਲੰਬੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਗੰਦਾ ਗਾਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਤੇ जी जी जी। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸਾਸਤ ਨਗਰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਯਾਰ ਮੁਲਤਾਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤਲੰਬੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਈਵਾਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾ ਜੱਫੀਆਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। जिसका नाम है पा जफियां। ਹਾਏ ਇਹ ਪਾ ਜੱਫੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ? मैंने देखा नहीं है, सुना है नाम, और मैं इस पर यकसतरी कमेंट दूंगा कि दुर फिटे मुंह। ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਰਡੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਗਾਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੀ ਚਲੇ ਗਏ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਆਰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ में कोई ममानत नहीं कर ले, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਗਾਣੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਤਾ ਹੂੰ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਰ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਵੇਦ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਗਾਣੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਬੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੀ, ਛਨ ਛਨ ਛਨ। ਆਰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੂੜੀ ਵਾਲਾ ਪਜਾਮਾ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਵਾਲ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਗਾਏ ਗਾਣਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਕਲਾਸੀਕਲ ਨੱਚੇ ਨੇ। नचन तो बाद उन्होंने कहा भाई क्लासिकल ये होता है, जो आपने दिखाया वो क्लासिकल नहीं है, इजाजत नहीं है। ਹਾਏ ਉਹ ਘਰੋਂ ਕਿਤੇ ਪਜਾਮਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा जी, आप क्या कहती हैं? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ। ਚੁੱਪ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸੁੱਟਦੇ। जैसे हर जाहिल तरीन पीर, आमिल, फकीर के भी मानने वाले होते हैं, इनके चाहने वाले भी, इनके फैंस भी होते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, इससे पहले आप दोनों से सवाल है कि जो एक थिएटर था टेलीविजन से पहले तो फैमिली टाइम होता था, तो जब उसकी पहली ये एक डाउन स्टेपिंग हुई कि इस किस्म की आनी शुरू हुई, तो लोगों ने क्यों नहीं तब एहतजाज किया? ये एक दिन में नहीं होता, ठीक है ना। शुरुआत ज़रूर हुई, आई थिंक 70 की दिहाई में शुरुआत हुई, और उसके साथ साथ जैसे जैसे वक्त बदला है, अनफॉर्चुनेटली जब इस्लामाइजेशन आई है, तो उसके साथ जो है थिएटर का हाल ये हुआ। वो इसलिए कि जो सोशल थिएटर था, जिसमें रोमांस था, जिसमें और चीज़ें थी, उसको जब बंद करना शुरू हुआ, थिएटर ने सर्वाइव तो करना था, किसी न किसी तरीके से तो चलना था। वहाँ से ये चेंज होना शुरू हुआ। ज़ियाउल हक का वजूद हमारे यहाँ फ़नून लतीफ़ा के लिए, फिल्म, थिएटर, इवन टेलीविज़न के लिए कोविड-19 साबित हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि ज़ियाउल हक खुद बाज़ौक़ आदमी था। अजीब सा ही ज़ौक़ था कि शत्रुघ्न सिन्हा जो है जी वो हीरो था सर, एंड मुशर्रफ नज़ीर के गाने बड़े ज़ौक़ व शौक़ से सुना करते थे वो। लेकिन हालत ये थी कि उस वक्त आप मेरे बॉस थे, पोलका हमारा क्लाइंट था, उसकी फिल्म लेके जा रहा था, बिल्कुल। तो खालिद गयास साहब ने कहा जनाब इसमें एक तो चुटकी बजाती है ना जो, दैट इज वल्गर। हाँ, वो एक्सेप्टेबल नहीं कि है। किस तरह वल्गर हो सकती है यार? खालिद गयास साहब ने क्या जी? खालिद गयास साहब उस वक्त इसलिए कि टीवी में अजीब उस वक्त वो सोच एक ही बात करते थे, मेरी नौकरी 10 सवाल। अच्छा, मैं इनसे पूछ रही हूँ, आप बताइए कि आप क्या कहती हैं कि थिएटर कैसे ठीक हो सकता है? थिएटर ठीक नहीं, हो सकता आपसे नहीं, आप उस वक्त से बोल रही हैं, सानिया कैफ साहिबा से पूछ रही हूँ। थिएटर ठीक हो सकता है जेरे ड्रामे 'ਚ मैं काम करा, पब्लिसिटी ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ गाना मैं करा। अच्छा, आपका अच्छा, वो ये भी बड़ी खास बातें भी शशके हैं कि इंटरवल पे गाना ये कोई खास चीज है। ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕਲੈਪ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਫੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ 16 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, शो स्टॉपर ਔਰ है। ਗਾਣੇ ਸੀ ਸਾਰੇ 6। ਫੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਨਾ, 4-4 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੈਡਲੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੱਜ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ सर मुझे तो लिटरली एम्बैरेसमेंट हो रही है इनका माइंडसेट, इनके कॉन्सेप्ट सुन के। ਡਾਕਟਰ ये ਸਾਹਿਬ थिएटर का सवाल नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का सोसाइटी का सवाल सवाल है। वैसे उम्र से
थिएटर बहुत पुरानी हिस्ट्री है, ग्रीक थिएटर से चली आ रही है, हजारों साल से चली आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत हर बड़ा- सोसाइटी में रोल रहा है। बिल्कुल हर सोसाइटी में उसके अपने अपने तहजीबी जो मखसूस दायरे थे उनके तहत रोल रहा है। आपने यूनान की बात की, उसको तो थिएटर का माखा समझा जाता है ना। और डिपक्स रेक्स का ड्रामा 2500 साल से पहले के अरसे का, सोफक्लिस का, वो आज भी यूरोप में दिखाया जा रहा है, आज भी अच्छे थिएटर्स में जो एशिया के दिखाया जा रहा है। और फिर उसमें पूरी डिपिक्शन है ना सिर्फ समाज की बल्कि उस मिथ की। फिर मिडिवल पीरियड में आप देखें एलिजाबेथियन एरा को जिसने समझना हो वो शेक्सपियर पढ़ ले, मार्लो और शेक्सपियर, मार्लो शेक्सपियर पढ़कर पूरा कॉन्टिनेंटल अप्रोच की समझ आ जाती है। फिर रेनेसांस पे जो उसका असर रहा, रेनेसांस के बाद रिफॉर्मेशन में, एनलाइटमेंट में, खुद हमारे यहाँ तहरीक आज़ादी की मूवमेंट के अंदर थिएटर का बहुत बड़ा किरदार था। लेकिन सर मैं एक बुनियादी सवाल सुनना चाहता हूँ, आप तीनों माहिरीन बैठे हैं, आप वल्गैरिटी की बात कर रहे हैं सर। ठीक है, पाकिस्तान में समझ आता है कि थिएटर का जवाल था तो वल्गैरिटी का सहारा लिया गया, लेकिन सर क्या वजह है कि वल्गैरिटी आज बॉलीवुड, हॉलीवुड, नेटफ्लिक्स, इधर वल्गैरिटी की हद हुई हुई है, इंतहा हुई हुई है। वहां पर वल्गैरिटी जो है ना वो सिर्फ साइड लाइन पे होती है, वो मेन कोर्स नहीं होता। हमारे यहाँ मेन कोर्स वल्गैरिटी है और साइड लाइन पे भी वल्गैरिटी है। सर अब हाउस ऑफ कार्ड जैसा एक सियासी ड्रामा, उसके अंदर वल्गैरिटी डाल के उसका पूरा वो अप्रोच ही खराब कर आप दी। ये देखें कि हाउस ऑफ कार्ड जहां से शुरू हुआ था सीजन 1 और उसके बाद जो हुआ, सीजन 1 ही उसका था, उसके बाद तो मजाक बन गया वो। लेकिन सर ये सारी चीज़ें ऐड तो हो गई ना। मैं इनकी बात सेकंड करती हूँ। एक एक्ट्रेस है, इंडियन ओल्ड एक्ट्रेस वहीदा रहमान साहिबा, मैं उनका इंटरव्यू सुन रही थी एक दफ़ा। शी सेड कि जब नई नई कलर फिल्म्स आई तो बहुत ज़्यादा लाइट उनके ऊपर डाली जाती थी फॉर बेटर रिजल्ट्स एंड स्टफ। तो एक कोई उनका क्लोजअप का सीन था, जब इतनी स्ट्रॉन्ग लाइट डाली तो उनकी आंखें रेड हो गई, उसकी वजह से हो जाती थी अक्सर। सेंसर बोर्ड ने वो क्लियर नहीं की कि ये रेड आंखें जो हुई हुई हैं ये सडक्टिव लगती हैं। तो इतनी सी चीज सेंसर कर दी जाती थी और अब वहां पे भी कहां से कहां स्टैंड। गाने सब साड़ी में होते थे। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਲੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ 9 ਟੇਕਾਂ ਨੇ ਜੀ ਨੀਲੀ ਬੇਗਮ ਦੀਆਂ। ਯੂਨਸ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, 8 ਵਾਰੀ ਟੇਕ, 9 ਵਾਰੀ ਟੇਕ ਉਹਨੇ ਕਿ ਨੀਲੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਫੁੱਟਵਰਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਫੁੱਟਵਰਕ वाह वाह वो इस जैसे होंगे भाईजान। नहीं ऐसी भी गल नहीं है, साडू एडे भी ना ठंडे समझो। अच्छा जी, आप मंथली कितना कमाती हैं? 1 ਲੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ महीने का? हफ्ते दा भाई ने ਨਹੀਂ ਹਫਤੇ ਦਾ। कितना जुल्म है, कितनी ऑब्जेक्टिफिकेशन होती है औरत की। जी जी जी। और इस ऑब्जेक्टिफिकेशन का अंदाजा खुद औरत को है ही नहीं कि उसके साथ हो क्या रही है। ਸਰ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਡਾਲਾ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜੇ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਸ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮਾਨਤ ਚੰਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ मैं कौन। जैसे उस लड़की ने मुनीर नियाज़ी से कहा था कि आप भी शायर हैं, कहता नहीं मैं कतील छुपाई है। डॉक्टर साहब एक गल ते दसो, ਜਿਹੜੀ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੈ? बेहतरीन कमाई है और कोशिश है जिवें अल्फलासी करने साडा प्रोड्यूसर अरशद चौधरी है, ਉਹਦੀ कोशिश ਹੁੰਦੀ कि अच्छा प्ले करो, अच्छी सैट लवाओ, अच्छा तुसीं रिहर्सल करो। लेकिन मैं बड़ी माफ़ी चाहांगा, मेरे दोस्त ने, मेरे भरा ने सारे रिहर्सल तो नहीं आते। सम टाइम ਹੁੰਦਾ कि कौमी तराना लगा है तो साढ़े स्टार इंटर हो के आके पुछते हैं कि पुछते भी नहीं, कई टाइम घरों कपड़े पा देने, अच्छा मैं फिर ये चाह बन के तो मैं चला जावांगा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਫਨਕਾਰ ਖੁਦ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਹਰਸਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अगर 7 महीने रिहर्सल जन्म वाली चादर दी हुई है तो वो 3 साल चले। बिल्कुल 3 साल चले और आज तक याद है सर, आज चलाएं वो आज भी सुपर डुपर हिट चले। 1 साल चल गया ड्रामा तो अफजाल साहब लंदन चले गए सन। वो लंदन तो वापस आए तो उन्होंने चोरी टिकट लैके तो अपना ड्रामा वेख्या। वो ड्रामा वेखन तो जो वेंड होया तो उन्होंने बंदे कहा कि मैं अफजाल है, मतलब पिछे जाके कोई फनकार जावे ना। उन्होंने कहा जी अफजाल साहब आ गए, उन्होंने तुसीं कर्टन खुला तो कल्ले हाल च बैठे सन। खुदा दी कसम उन्होंने इतनी बेइज्जती की, तो उन्होंने कहा यार हाँ मैंने सुनी ये बात। इन्ने दिनों बाद यार मैं मेरा तो ड्रामा खराब करता। फिर रिहर्सल हुई साल तो बाद रिहर्सल की थी सारे ने, 1 साल बाद भी किसी को इतराज़ नहीं। और सारे सुपरस्टार फनकार से जो कह सकते यार अफजाल हम नहीं करते, लेकिन उन्होंने किया है। इत्थे जे कोई उस गल नूं मनण लई तैयार ही नहीं है। शर्तिया मिठे की रिहर्सल हुई थी भाई। रिहर्सल हुई जी। महीना रिहर्सल हुई। थिएटर बगैर रिहर्सल के हो कैसे सकता है? अच्छा जी, इस वक्त हम वाइंड अप कर रहे हैं। 2 चीज़ें सरदार कमाल ने बताई हैं। एक तो ये कि अगर आप रिहर्सल्स पे जोर देंगे क्वालिटी बेहतर तो होगी। क्वालिटी बेहतर हो। वाइंड अप करते हुए मैं जो गुजारिश पहले कर चुका हूं उस पर कायम हूं कि वल्गैरिटी का इलाज तो 2 मिनट में 2 मिनट के अंदर वल्गैरिटी का इलाज हो सकता है। एक बंदे को कॉलर से पकड़ें और सीधा हवालात में फेंके। जब पकड़े जाएंगे ना वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं, सरकारी उमाल, गिरफ्तारियां डालें और तमाशा देखें, खत्म हो जाएगी ये वल्गैरिटी। एक
ریہرسل والی بات بہت اچھی ہے. نمبر 2, آپ تھیٹرز کے حالات بہتر کریں, اور میڈیا کے ذریعے ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ریکویسٹ کریں پڑھے لکھے پروڈیوسرز کو, انویسٹرز کو نہیں, پروڈیوسرز کو, اس کام کا بیڑا اٹھائیں. ایک ڈوبتی ہوئی صنعت, ایک بجھتے ہوئے چراغ کو بچانے کے لیے. اچھا سر, نالے ایک اور میں گل عرض کرنا چاہوں گا کہ آرٹس کونسل ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਣੀ ਸੀ ਥੀਏਟਰ ਲਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਉੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਫੀਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ایک اور پوائنٹ, یہ اچھی بات ہے, اچھا مشورہ, فنکار ਨੂੰ تحفظ بھی ہوئے گا اور ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ بھی ہوئے گی. اور اس کے علاوہ سر اصل بات تو پھر جو آپ کر رہے ہیں نا کہ اگر سینسرشپ کو بہت سخت کیا جائے, اگر کڑی سزائیں دی جائیں اگینسٹ ولگیرٹی, اگینسٹ ولگیرٹی, فحاشی کے خلاف, سر ان افسران کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے. ان کی تصویریں, عمر جاوید صاحب, تصویریں جب چھپیں گی نا, نیمنگ اینڈ شیمنگ, ہاں, نیمنگ اینڈ شیمنگ سے بڑھ کر, اور چائنا اس کا سرخیل ہے. یار چنگا نہ آ گئی نیمنگ شیونگ. مطلب اس کا آپ کو تب سمجھ میں آئے گا جب آپ کے ساتھ ہوگی یہ نیمنگ اینڈ نو شیمنگ. ہمارے اوکاڑا میں ایک بڑے شاندار پروفیسر ہیں انگریزی لٹریچر کے, تو ان کے گھر کو ایسا ہی جیسا یہ پروڈیوسر بیٹھا نا, ایک بندہ گیا تو اس نے کوئی بات کرنی تھی یا کچھ سفارش کرنی تھی یا کوئی نمبر لگوانے تھے, تو نوک کیا بڑا تم تراک سے, تو بچہ باہر نکلا تو بھول گیا نام, اب سلیم باغی صاحب, تو کہتا غدار صاحب ہے